میں نے عالم تصور میں پوچھا اے سیدہ آمنہ اے نبی کی امی ذرا اتنا بتا دیں جب میرا نبی پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہونٹ چلا رہا ہے کون سے جملے کہہ رہا ہے کسے یاد کر رہا ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میں نے کان لگا کر کے سنا میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی مولا میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے اے پروردگار ہماری گناہگار امت کو جنت کا ٹکٹ دے دے جب اسی پر نظر علامہ جمیل قادری کی پڑی تو پکار اٹھے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ ہوتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ یاروں ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو دنیا کے اندر جلوگر ہوئے اب ذرا دیکھیں میرے نبی فرماتے ہیں او لوگوں جن جن ذاتوں میں میرا نور منتقل ہوتا گیا وہ ذاتیں بڑی شان والی ہوتی گئی جب میرا نور پشت آدم میں رکھا فرشتے سجدہ کرنے لگے جب وہی نور آدم کی پشت سے منتقل کر کے پیشانی میں آیا تو فرشتے آگے آ گئے آدم نے عریضہ پیش کیا پروردگار یہ فرشتے میرے آگے پیچھے کیوں جا رہے مولا نے فرمایا آدم یہ تیرے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کے نور کی تعظیم میں تیرا چکر لگا رہے آدم نے عرض کیا پروردگار محبوب کے نور کو ایسی جگہ رکھ دے تاکہ میں بھی دیکھ سکوں آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخون میں نور محمدی کو منتقل کیا گیا تصویر مصطفیٰ کو بنایا گیا آدم علیہ السلام نے وہ انگوٹھے کے ناخون اپنی آنکھوں سے لگا لیے اگر کوئی کہے انگوٹھے چومنا شرک و بدعت تو اس سے کہنا انگوٹھے چومنا شرک و بدعت نہیں بلکہ یہ حضرت آدم کی سنت ہے جب اور ذاتوں میں نور محمدی کو منتقل کیا جاتا ہوگا وہ ذاتیں کتنی شان والی ہوتی ہوں گی وہ ذاتیں کتنی رفع و اعلیٰ ذات والی ہوتی ہوں گی جب یہی نور پشت ابراہیم میں آیا تو آگ جلا نہیں سکی جب یہی نور پشت اسماعیل میں آیا تو چھری کاٹ نہیں سکی جب یہی نور اور آگے منتقل ہوتا گیا وہ ذاتیں بڑی شان والی ہوتی گئیں بڑی عرفہ و اعلیٰ ذات ہوتی گئیں اللہ اکبر جب یہی نور پشت عبداللہ میں آیا ہے اب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو جا رہا ہے جب حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ کے ساتھ ہوا ہے حضرت عبداللہ کا نکاح سیدہ آمنہ کے ساتھ میں ہوا ہے جب میرے نبی کا نور رحم آمنہ میں آیا ہے شکم آمنہ کے اندر جب میرا نبی جلوگر ہو گیا ہے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی او مبارک ہو مصطفی رب کردگار کا آخری پیغمبر ماں کے شکم کے اندر جلوگر ہو گیا ہے سمندروں کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی اللہ اکبر اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ رب کردگار کا آخری محبوب شکم مادر میں جلوگر ہو گیا ہے اب میرے نبی سیدہ آمنہ کے شکم مبارک کے اندر جلوگر ہیں آقا کریم اپنی ماں کے شکم کے اندر ہیں 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے حضرت عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے کہا تھا اے میری شریک حیات اب مجھے پردیس جانا ہے تجارت کی غرض سے میں جلد ہی واپس آؤں گا
तेरे हाथ की बनी रोटी को खाऊंगा। सैयदा आमना ने कहा था, ऐ मेरे सरताज, अभी हमारी शादी के 2 माह हुए हैं, अभी तो हमने बैठ करके आपस में एक दूसरे से सही से बात भी नहीं कर पाए, अभी इतनी जल्दी हमें छोड़ करके जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, ऐ आमना टेंशन ना ले, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। हजरत अब्दुल्ला को भीगी पलकों के साये में सैयदा आमना ने रुखसत किया है। हजरत अब्दुल्ला परदेस गए हैं। जब वही वक्त, वही टाइम, वही तारीख, वही घड़ी सैयदा आमना को याद आई है। सैयदा आमना घर की सफाई कर रही हैं। अल्लाह अकबर, दोपहर का वक्त आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आमना खाना खा ले। सैयदा आमना ने कहा था, अब्बू जान शाम को मेरे अब्दुल्लाह आएंगे, उन्हीं के साथ में बैठ करके खाना खाया जाएगा। लेकिन रब्बे किरदिगार को कुछ और ही मंजूर था, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। शाम का सूरज गुरूब हो गया, परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले गए। शाम का वक्त जब हो गया, सैयदा आमना ने कहा था, ऐ मेरे अब्बू जान अब्दुल मुत्तलिब, मेरा अब्दुल्लाह अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? जाओ मेरे अब्दुल्लाह की कुछ खबर लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना-ए काबा के पास आए हैं, खाना-ए काबा का तवाफ किया है। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे हैं, एक शख्स ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब ठहरिए, कुछ बात करनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बता तुझे क्या बात करनी है? आने वाले शख्स ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हारा बेटा अब्दुल्लाह परदेस गया था? हाँ, मेरा लाल परदेस गया था। उस आने वाले शख्स ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, अब आपका बेटा अब्दुल्लाह वापस नहीं आएगा, इसलिए कि उसका परदेस में इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पत्थर बरसा करके अब्दुल मुत्तलिब को दबा दे। आज अब्दुल मुत्तलिब को ऐसा लग रहा है जैसे जमीन फट के अब्दुल मुत्तलिब को अपने अंदर समा ले। आज बेटे की अल्लाह अकबर मौत की खबर सुनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सोच रहे हैं, मैं तो अपने और बेटों को देख करके तसल्ली ले लूंगा, लेकिन मेरी आमना का क्या होगा? अल्लाह अकबर, आज अब्दुल मुत्तलिब चल रहे हैं सैयदा आमना के घर की तरफ। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन तंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन अल्लाह अकबर तंग होती जा रही है। मेरे अजीजों, अब जरा गौर करते चले। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सैयदा आमना की दहलीज पर पहुंचे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आहट जैसे ही सैयदा आमना ने महसूस की है, दरवाजे की दहलीज पर आ जाती है और कहती है, ऐ मेरे अब्बू जान बताओ मेरा अब्दुल्लाह कहाँ है? अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आवाज दबी है, आंखों में नमी है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ बेटी आमना, अब किसी अब्दुल्लाह का इंतजार नहीं करना है, इसलिए कि जो अब्दुल्लाह वापस गया था वो अब वापस नहीं है। जो अब्दुल्लाह काम की गरज से गया था वो अब्दुल्लाह अब वापस नहीं आएगा। उस अब्दुल्लाह का परदेस में इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना के दिल पे कयामत उतर आई। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हैं। अचानक अल्लाह अकबर जमीन पर बैठी, बैठने के बाद आसमान की तरफ सर को उठाया था, ऐ परवरदिगारे आलम, अभी तो मेरा बेटा दुनिया के अंदर आया भी नहीं है। मौला, अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा भी नहीं देखा है। ऐ परवरदिगारे आलम, अभी इसके बाप ने बेटे का चेहरा भी नहीं देखा है। मौला, मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। ऐ परवरदिगारे आलम, मक्के के लोग बड़े ही जालिम व जाबिर हैं। परवरदिगार, जब यतीमी का दाग किसी पे लग जाता है, मौला ये बड़ी गिरी नजरों से देखा करते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, मक्के के लोग इतने जालिम व जाबिर हैं, अगर कोई औरत बेवाह हो जाती है, कौड़ियों के दाम उसको बाजार में बेच दिया जाता है। परवरदिगार, तूने मेरे बेटे को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। फरिश्ते आसमानों पे कह रहे थे, मौला ये दुनिया के अंदर कौन आने वाला है? रब्बे किरदिगार ने फरमाया था, ओ फरिश्तों, ये दुनिया के अंदर मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने कहा था, मौला महबूबों के साथ ऐसा तो नहीं किया जाता है। परवरदिगार, तूने अपने महबूब को दुनिया में आने से पहले यतीम कर दिया। ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब की अम्मी ज़ारो कतार रो रही है, आवाज़े कुदरत आती है, ऐ आमना टेंशन ना ले, मैंने तेरे बच्चे को यतीम नहीं बनाया है, बल्कि तेरा बच्चा तो वो है
जब दुनिया में आएगा इसके सर पे दुनिया और आखिरत की सरदारी का ताज सजा दूंगा। ऐ आमना आंसू साफ कर ले, ये तेरा बेटा यतीम नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने वाला है। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करते चले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में दुआ कर रहे हैं, मौला तूने आमना के शौहर को पहले ही उठा लिया, ऐ परवरदिगारे आलम एक ऐसा बेटा मेरे आमना की गोद में दे दे जो मेरी आमना की आंखों की ठंडक बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम अब दुआ कर रहे हो, मैंने आमना को ऐसा बेटा देने का फैसला कर लिया है जो बेटा सैयदुल अंबिया होगा, जो बेटा नबियों का सरदार होगा, वो बेटा इतनी अजमतों वाला होगा, इतनी रिफातों वाला होगा, जब अगर उसे कभी पहनने की ख्वाहिश होगी तो मैं मेराज के बहाने उसे अर्श की सैर करा दूंगा, मैं उसे जन्नत की सैर करा दूंगा। अगर जब कभी खिलौने की बात आएगी, दुनिया के बच्चे दुनियावी खिलौने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मेरे महबूब की खिलौने की बात आएगी तो पार्ले में लेटा करके इसका खिलौना चांद को बना दूंगा। अगर जब कभी मुस्तफा जाने रहमत अगर खिलौने से खेलेंगे तो चांद को अल्लाह अकबर नबी का खिलौना बना दूंगा। इतनी अज़मतों वाला मुस्तफा अहमद रजा की नजर पड़ी तो पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महक में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आता गया, करीब आता गया। सैयदा आमना कहती हैं जैसे ही नबी की विलादत का वक्त करीब आता जाता मेरे जिस्म से ऐसी खुशबू निकलने लगी थी, पूरे मक्के में ये चर्चा होने लगा था कि आमना ऐसी इतर लगाती है जो मक्के के अंदर कोई दूसरा वो इतर नहीं लगाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं। जब आप काबे के पास गए हैं तो मक्के के चंद लोग आकर के कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम तो जानते हो मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का तौर तरीका बड़ा अलग है। आप तो जानते हैं अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे 1 साल तक गम मनाना रहता है। वो नए कपड़े नहीं पहन सकती है, वो खुशबू नहीं लगा सकती है, वो बन संवर करके नहीं निकल सकती है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब आपकी बहू आमना को तो अंदाज ही ऐसा है कि वो तो ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को मयस्सर तक नहीं होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर पे आए, आने के बाद अपनी बीबी फातिमा से कहा है, ऐ फातिमा जाओ आमना के पास चली जाओ, आज मक्के के लोगों ने शिकायत की है कि उसने हमारे बेटे अब्दुल्लाह का गम क्यों मनाना छोड़ दिया है। वो ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को मयस्सर तक नहीं होती है, वो ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के अंदर कोई और दूसरा वो खुशबू नहीं पा सकता है। अल्लाह अकबर। फातिमा कहती हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जाओ तुम ही चले जाओ, मैं तो आमना से पूछने की हिम्मत नहीं रखती हूँ, इसलिए कि जब मैं आमना के पास गई थी मैंने किसी बात को छेड़ा था तो मैंने देखा कि आमना की पेशानी से ऐसा नूर निकला जिस नूर से मैं बेहोश हो गई थी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, सैयदा आमना के पास गए, आमना से कहा था ऐ मेरी बेटी एक बात कहनी है। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना ने कहा बाबा कौन सी बात कहनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ आमना तूने मेरे बेटे अब्दुल्लाह का गम मनाना छोड़ दिया है, तू ऐसी खुशबू लगाती है जो मक्के के अंदर किसी को मयस्सर नहीं होती है। सैयदा आमना ने कहा था, ऐ बाबा जान एक राज था जो बहुत दिनों से सीने में दबा करके रखा था। ऐ मेरे बाबा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई इतर नहीं लगाती हूँ, बल्कि बात सच ये है मेरी पेशानी से एक दिन पसीने के कतरे आए थे, मैंने वो पसीने के कतरे अपने दुपट्टे में पोंछ लिए थे, मेरा दुपट्टा खुशबू से महक उठा था। जब मैंने सोचा कि मैं अपने दुपट्टे को नचोड़ दूं, जैसे ही मैंने अपने दुपट्टे को नचोड़ा है, जब उसका पानी मोहल्ले की गलियों में पहुंचा है तो मोहल्ले की गलियां खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। इसीलिए ये मोहल्ले के अंदर बात हो रही है कि आमना खुशबू लगाती है। ऐ बाबा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई इतर नहीं लगाती हूँ, बल्कि बात सच ये है
जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत हमारे शिकम के अंदर आई है, हमारे पेट के अंदर आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाया करती हैं। मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और कुछ? कहा हाँ बाबा, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ मैंने देखा कि पत्थर मुझे सलाम करते हैं। अरे बेटी तुझे वो क्या कहते हैं? अरे अब्दुल मुत्तलिब वो मुझे कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह। अरे नबी की अम्मी तुझ पर सलातो सलाम हो, तेरे आने वाले बच्चे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी सलातो सलाम हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और कुछ? कहा हाँ बाबा, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ रास्ते के पेड़ झुक करके हमें सलाम कहते। कहा बेटी और कुछ? कहा हाँ, मैं जिस कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए जाती हूँ औरतें हमारे इंतजार में खड़ी होती हैं। कहा बेटी वो किस लिए? कहा बाबा, जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ कुएं का पानी अचानक ऊपर आ जाता है और सिर्फ ऊपर ही नहीं आता है बल्कि वो हमसे बात भी करता है और कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह। ऐ नबी की अम्मी तुझ पर सलातो सलाम हो, तेरे आने वाले बच्चे मोहम्मद पर भी सलातो सलाम हो। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करते चले, मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आता गया, करीब आता गया। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना कहती है हमारे दिल के अंदर ख्याल आया कि काश अब्दुल्ला होते तो कहीं से तेल का इंतजाम कर देते, उजाले के लिए चिराग को जला लेते। जैसे ही मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया मैंने देखा कि 3 औरतें मुझे मुबारकबाद देने के लिए आई हैं और वो कह रही हैं आमना मुबारक हो। कौन सी मुबारकबाद? ऐ आमना सुन, ऐ आमना सुन ले, तेरा आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं होगा बल्कि वो बच्चा नबियों का सरदार होगा, रब्बे किरदार का महबूब होगा। वो बच्चा ऐसा बच्चा होगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। वो बच्चा ऐसा बच्चा होगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने आदम को जिंदगी बख्शी। वो बच्चा ऐसा बच्चा होगा जिसके सदक़े में अल्लाह ने अपनी रब्बुवियत का ऐलान फरमाया। सैयदा आमना कहती हैं वो मुझे मुबारकबाद दे ही रही थी, मैंने देखा कि एक खातून और आई है, उसके हाथ में एक दूध का प्याला था। सैयदा आमना कहती फशक्कल जिदार, जब मैंने देखा मेरे घर की एक दीवार फटी, उसमें से बड़ी हसीनो जमील खातून निकली। मैंने उससे कहा खातून तू कौन है? उसने कहा आमना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। किस लिए आई हो? आमना मुबारकबाद देने के लिए, इसलिए कि तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। सैयदा आमना कहती है उसके हाथ में एक दूध का प्याला था, जैसे ही दूध उसने वो प्याले का मुझे दिया मैंने वो दूध पिया। फखरजत मिन्नी नूर, मुझसे ऐसा नूर निकला जिससे मैंने शाम के महल्लात देख लिए हैं। अब वो वक्त भी आ गया कि नबी की विलादत का वक्त करीब आया। मेरे इमाम ने कहा सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबूए बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी के विलादत का वक्त करीब आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह शादी का वक्त है, माह रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख है। मेरे नबी की विलादत हुई, रब्बे किरदार ने आसमान के सितारों को सैयदा आमना के घर की तरफ मुअल्लक कर दिया। सैयदा आमना कहती हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये आसमान के सितारे टूट करके अभी हमारे घर में गिर पड़ेंगे। सैयदा आमना कहती नबी की विलादत हो गई। अब हर माँ की ख्वाहिश होती है जब वो बच्चा जने तो वो सोचती है हम अपने बच्चे के चेहरे को देखो, मेरे लाल का चेहरा कैसा है, मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, मेरे लाल का रुखसार कैसा है, मेरा बेटा कैसा देखने में लगता है। सैयदा आमना कहती है मेरे भी दिल की ख्वाहिश थी मैं भी देखूं कि मेरे लाल का कैसा चेहरा है। वलम्मा नजर तू, सैयदा आमना कहती है जब
جب میں نے اپنے لال کی طرف نظر ڈالی مکحولن آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، مختونن ختنہ شدہ پیدا ہو رہے، مکسورن ناف کٹا ہوا ہے، معطرن سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے لال کے جسم سے ایسے خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگے تھے، مغسولن میرا لال غسل کر کے پیدا ہو رہا ہے، کانا ساجدہ جیسے ہی میرا لال آیا اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، میں نے دیکھا سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے عالم تصور میں پوچھا اے سیدہ آمنہ اے نبی کی امی ذرا اتنا تو بتا دیں جب میرا نبی پیدا ہو رہا ہے تو پیدا ہونے کے وقت وہ ہونٹ چلا رہا ہے، وہ ہونٹ جن کے بارے میں میرے امام نے کہا پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، میں آقا کریم کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے عالم تصور میں پوچھا اے سیدہ آمنہ اے نبی کی امی ذرا اتنا بتا دیں جب میرا نبی پیدا ہو رہا ہے تو وہ ہونٹ چلا رہا ہے کون سے جملے کہہ رہا ہے کسے یاد کر رہا ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میں نے کان لگا کر کے سنا میں نے دیکھا میرے لال کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی، مولا میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے، اے پروردگار ہماری گناہگار امت کو جنت کا ٹکٹ دے دے۔ جب اسی پر نظر علامہ جمیل قادری کی پڑی تو پکار اٹھے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام